চন্দ্র সুশিকার নিতাই পদ কমল কোটি চন্দ্র সুশীতল যেথায় জগৎ জুড়ায় যেথায় জগৎ জুড়ায় কেন নিতাই বিনে ভাই রাধা কৃষ্ণ পাইছে নাই কেন নিতাই বিনে ভাই রাধা কৃষ্ণ পাইছে নাই দৃঢ় করি ধরো নিতাই পাই দৃঢ় করি ধরো নিতাই পাই সে সম্বন্ধ নাহি বৃথা জন্ম গেল সে সম্বন্ধ নাহি বৃথা জন্ম গেল সে পশু বড় দুরাচার সে পশু বড় দুরাচার নিতাই না বলিল মুখে মজিল সংসার সুখে নিতাই না বলিল মুখে মজিল সংসার সুখে ব্যাকুলে কি করিবে ব্যাকুলে কি করিবে অহংকারে মুক্ত হইয়া নিতাই পদ পাশারিয়া অহংকারে মুক্ত হইয়া নিতাই পদ পাশারিয়া অসত্যের সত্য করি মাই অসত্যের সত্য করি মাই নিতাই করুণা হবে যদি রাধা কৃষ্ণ পাবে নিতাই করুণা হবে যদি রাধা কৃষ্ণ পাবে নিতাই চরণ ধরণিতাই চরণ নিতাই চরণ সত্য তার সেবক নিত্য নিতাই চরণ সত্য তাহার সেবক নিত্য নিতাই পদ সদা নিতাই চরণ সদা নরোত্তম বড় দুঃখী নিতাই মোরে করো সুখী নরোত্তম বড় দুঃখী নিতাই মোরে করো সুখী রাম চরণের রাম চরণের হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে জয়
Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Gurudeva Jaya Gurudeva Patita Pavana Gurudeva Tagora Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nita Gaur Hari Bol Nita Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hare Krishna Hare Krishna Om Jnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovrishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Sapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Shagrajatam Savana Raghunatamritam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saritam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Savana Lalita Shri Vishakhamritam Sya He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Deve Pranamami Haripriye Mancha Kalpataruvasya Kripa Sindhuvayeva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nitinamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Mukam karoti vachalam pangum langayate girim yat kripatamaham vande Shri Guru Dinataranam Paramananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram Gurave Gaurachandraya Radhikaya Taralaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha हरे कृष्णा डेडी तो मैंने आप सबको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं नित्यानंद त्रयोदशी की। मैं पहले आप सबसे क्षमा मांग रही हूँ, अगर कुछ भी गलत बोल तो अगर कहीं पे भी आपको कुछ भी बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना है, बच्चा समझ के। हरे कृष्ण। तो आज मैं ऐसे ही नित्यानंद त्रयोदशी है तो कुछ स्पेशल भोग बना रही थी, तो मैंने गूगल में सर्च किया कि नित्यानंद प्रभु को क्या पसंद है सबसे ज्यादा। तो मैंने देखा नित्यानंद प्रभु को खट्टी चीजें, मीठी चीजें, मतलब सारी वैरायटीज की चीजें बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने सोचा कि ज्यादा तो मैं कुछ बना नहीं पाऊंगी, तो क्यों ना मिठाई बनाया जाए मिठाई के लिए। तो कुछ नहीं था तो मम्मी ले आई बाहर से मिठाई संदेश। तो मैं भोग बना रही थी, भोग बनाते बनाते मैं लेक्चर सुन रही थी, तो मैं थोड़ा सा दूसरे घर में गई थी। तो मैं जब किचन में आई तो मैंने देखा कि मम्मी ने जो संदेश का पैकेट है, ये बंगाल में ऐसा होता है या कहीं और भी होता है मुझे नहीं पता, पर मम्मी ने जो मिठाई का जो पैकेट है स्क्वायर शेप का, उसको मम्मी ने एक कटोरा लिया, उस कटोरे में मम्मी ने पानी दिया एंड पानी के ऊपर एक और छोटा कटोरा दिया, उसके ऊपर बिठाया। क्यों बिठाया? क्योंकि जो चींटियां होती है ना, मिठाई है तो मिठाई खाने के लिए जो चींटियां होंगी वो मिठाई के पैकेट में घुस जाएंगी। तो मम्मी ने क्या किया, एक बड़ा सा कटोरा लिया, उसमें पानी दिया, उसमें एक बीच में एक द्वीप टाइप का बनाया, एक और छोटा कटोरा देके उस द्वीप के ऊपर उन्होंने मिठाई का पैकेट बनाया। और जो चींटियां जब जाएंगी तो उसमें वो चढ़ेंगी और जो बड़ा पतीला है उसके ऊपर, एंड फिर जो नीचे जाएगी
चलते चलते तो पानी में डूब जाएगी, तो ऐसे वो वहां पे डूब के मर जाएगी, तो नहीं पहुंच पाएगी मिठाई के पैकेट तक। तो ये जो संसार है, भौतिक संसार है, ये भी ऐसा है कि हम चींटियां हैं और हम चलते चलते सोचते हैं राधा कृष्ण के चरण पाएंगे, तो हम चलते चलते जाते चींटियों की तरह और नीचे कूदते हैं और फिर संसार के फंदे में फंस जाते हैं, मारे के फंदे में फंस जाते हैं, डूब कर मर जाते हैं। पर निताई जो है ना, निताई क्या करते हैं, उसके ऊपर से एक सड़क बना देते हैं ताकि हम जाए और हमको नीचे ना जाना पड़े, हम ऊपर से चलते हुए एकदम उस मिठाई के पैकेट तक पहुंच जाए जो कि राधा और कृष्ण का प्रेम है। तो निताई इज दैट मर्सिबल पर्सनालिटी जो हमें राधा कृष्ण अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंच आती है। तो ये जो मैंने अभी गाना गाया, निताई पद कमला कोटि चंद्र सुशीतल ये छाया जगत जुराय, हेनो निताई बिने भाई राधा कृष्ण पाइते नाई दृढ़ करी धरो निताई पर। इसका अर्थ क्या है? जो बंगालीज हैं वो तो समझ रहे हैं, बट जो दूसरे लैंग्वेजेस के डिवोटीज हैं और देयर से मैं बताती हूँ। जो निताई पद कमल, निताई के जो चरण है, पद है, उनको कमल के समान तुलना किया जा रहा है। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, और वो इतना शीतल है, कितना शीतल है, कोटि चंद्र जितना शीतल है, कोटि चंद्र सुशीतल, ये छाया है जगत जुड़ा है, और जिसके छाया में पूरा ये जो जगत संसार है वो वास करता है। इसका क्यों मैं बता रही हूँ उसको, इसके बाद वाला जो लाइन है, हेनो निताई बिना भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं दृढ़ करे धर्म थे। हम जब भी भक्ति लाइफ में आए हैं, हमारा गोल क्या है? जैसे राधा कृष्ण के चरण जुगल का प्राप्ति के लिए हम इस भक्ति जीवन में आए हैं, ताकि एक दिन हम इस मटेरियल वर्ल्ड को त्याग के, छोड़ के हम वापस अपने परम धाम श्री गोलोक वृंदावन जा सके। तो राधा कृष्ण के चरण की प्राप्ति है तो हम भक्ति जीवन में आए हैं और हम भक्ति कर रहे हैं, और कोई मनुष्य नहीं है। पर राधा कृष्ण के चरण ऐसे नहीं प्राप्त होते। तो यहाँ पे नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे कि कैसे राधा कृष्ण का चरण हम प्राप्त कर सकते हैं ना, हेनो निताई बिने भाई, निताई के बिना राधा कृष्ण के चरण नहीं मिलेंगे। इसीलिए दृढ़ कोरी धरो निताई पाई, दृढ़ करके नित्यानंद प्रभु के जो चरण युगल है उसको पकड़ने को कह रहे हैं श्री नरोत्तम दास ठाकुर, जो कि हमारे बहुत ही वरिष्ठ गौरी वैष्णव आचार्य हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ही इज मर्सिबल पर्सनालिटी। हम जानते हैं कि राधा कृष्ण से बहुत ही ज्यादा मर्सिबल है लॉर्ड चैतन्य, परंतु लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ही इज प्रीचिंग टू द मासेस। कैसे? चैतन्य महाप्रभु किनको प्रीच करते हैं? चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती को प्रीच करते हैं। चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को प्रीच करते हैं। चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, अनुपम गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, इन सब स्कॉलरली डिवोटीज को प्रीच करते हैं, जिनको इनका जीवनी पता है। रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, दे आर मोस्ट स्कॉलरली पीपल। रूप गोस्वामी को तो कहा जाता है रूप गोस्वामी इतने लैंग्वेजेस जानते थे, क्या बताए। तो इतने ज्यादा स्कॉलरली व्यक्ति को, मतलब एकदम फर्स्ट क्लास डिवोटीज को वो प्रीच करते थे ताकि वो बाद में जाके प्रीचिंग कर पाए। बट नित्यानंद प्रभु इज प्रीचिंग टू द मासेस। लॉर्ड चैतन्य इज प्रीचिंग टू द क्लासेस एंड नित्यानंद प्रभु इज प्रीचिंग टू द मासेस। मतलब हम जैसे मासेस को, हम एक झुंड है, जैसे चींटियों का झुंड होता है, हम चींटियों का झुंड है जो कि हर दिन माया के चरणों के तले पिसता जा रहा है। जैसे हम जाते हैं ना, चलते चींटियों को पिसते हैं, वैसे हम भी माया देवी के चरणों तले पिसे जा रहे हैं, रोज भौतिक संसार में पिसते हैं। और नित्यानंद प्रभु इतने दयामय है, इतने करुणामय है कि वो हम लोगों का जो दुख कष्ट है ये देख नहीं पाते, तो खुद आ गए कि नहीं, मैं आऊंगा, मैं इन सबका उद्धार करके भगवान के श्री चरणों में ले जाऊंगा। एक एग्जाम्पल हम सब जानते हैं जगाई मधाई का। जगाई मधाई जैसे पति को नित्यानंद प्रभु ने उद्धार किया, एंड जो जगाई मधाई जो मतलब जिन्होंने कोई भी ऐसा खराब कर्म नहीं था जो उन्होंने नहीं किया है, उन जगाई मधाई को नित्यानंद प्रभु ने क्या बना दिया? जगनानंद ब्रह्मचारी और माधवानंद ब्रह्मचारी। नित्यानंद प्रभु ने उनको ब्रह्मचारी बना दिया। दिस इज नित्यानंद प्रभु करुणा।
क्या है कि नित्यानंद प्रभु क्यों वो आ रहे हैं, वो इतना टीचिंग कर रहे हैं, महाप्रभु ऐसा क्यों नहीं कर रहे? बिकॉज महाप्रभु इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड एंड नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु है गुरु तत्व। शास्त्रों में चैतन्य भागवत में वर्णना है कि एक ही देह दो है भिन्न मात्र काय, आदि काय विभव कृष्ण लीला रस सहाय। अर्थात जो नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु को उनको मेंशन करके यहाँ पे बोल रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि एक ही देह दो है भिन्न मात्र का है, दोनों का देह एक ही है, जस्ट इन दोनों का जो स्वरूप है वो अलग अलग है। मतलब कृष्ण और बलराम, कृष्ण काले हैं और बलराम जी गोरे हैं। वही कृष्ण बलराम गौर और नित्यानंद प्रभु के रूप में आए हैं। तो गौरांग महाप्रभु सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड है एंड नित्यानंद प्रभु इज आल्सो सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ सेविएटर गॉडहेड। तो कृष्ण का जो उनका मनोभाव है वो ये है कि मैं परम भगवान हूँ, और जो बलराम जी का सेवा भाव है वो है कि मैं परम भगवान का सेवक हूँ, मैं सेवक भगवान हूँ। ये है नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु वो क्या रोल प्ले कर रहे हैं हमारे भौतिक संसार में? वो गुरु तत्व का रोल यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। ही इज गुरु तत्व। जैसे कृष्ण को प्राप्त करने के लिए गुरु चाहिए होता है, तो ये नित्यानंद प्रभु इज दैट गुरु तत्व जो हमें कृष्ण तक पहुंचाएंगे, जो हमें महाप्रभु तक पहुंचाएंगे। राधा और कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हमें गौरांग महाप्रभु के चरण को प्राप्त करना होता है, परंतु गौरांग महाप्रभु के चरण प्राप्त करने इतना इजी नहीं है। एक कथा आती है चैतन्य चरितामृत में, मैं उन व्यक्ति का नाम भूल गई हूँ, बट एक व्यक्ति है, नाम मैं भूल गई। सो वो व्यक्ति उन्होंने क्या किया था? हाँ, छोटा हरिदास ठाकुर। छोटा हरिदास ठाकुर उन्होंने एक स्त्री को काम दृष्टि से जस्ट देखा था, जस्ट काम दृष्टि से देखा था, कुछ नहीं किया था, बात किया था, थोड़ा सा फ्लटर किया था उनके साथ। महाप्रभु ने उनको त्याग दिया, और ऐसा नहीं कि महाप्रभु ने त्याग के उनको वो वापस ले लिया बाद में कि हाँ तेरा दंड देते हैं मैं ले लूं, नहीं, उन्होंने त्याग दिया, हमेशा हमेशा के लिए उनको त्याग दिया। एंड छोटा हरिदास ठाकुर को सुसाइड करना पड़ा। अब ऐसा नहीं कि हम भी सुसाइड कर देंगे, महाप्रभु ने तो हमें भी त्याग दिया है, ऐसा नहीं। हम हमें दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा लीला किया है। तो महाप्रभु कितने स्ट्रिक्ट है, आप देख सकते हो कि जस्ट किसी एक स्त्री को काम दृष्टि से थोड़ा सा उन्होंने देखा, महाप्रभु ने उनको त्याग दिया, एक हमेशा हमेशा के लिए त्याग दिया। इनफैक्ट स्वरूप दामोदर गोस्वामी, इन जैसे महाप्रभु के जो पार्षद हैं, इनका बात तक नहीं सुना महाप्रभु ने। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि हे महाप्रभु, और उससे गलती की है, माफ कर दीजिए। महाप्रभु ने बोला तुम्हें वो चाहिए या मैं मुझे चाहिए? तो महाप्रभु ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो महाप्रभु का चरण प्राप्त करना बहुत 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 टफ है, बहुत साधना, बहुत ज्यादा ऑस्टेरिटी करना पड़ता है। परंतु नित्यानंद प्रभु इज दैट गुरु तत्व who can take you back to Lord Chaitanya's lotus feet, and then Lord Chaitanya Mahaprabhu can take you to Krishna's lotus feet. So अगर हमें कृष्ण भक्ति चाहिए तो नित्यानंद प्रभु के चरण में हमें जाना पड़ेगा। नित्यानंद प्रभु इतने मर्सीफुल है कि चैतन्य चरितामृत के आदि लीला 7.23 में एक श्लोक आता है, पात्र पात्र विचार नाही स्थान स्थान जे जहाँ पाए तारे गोरे प्रेम दान। ये जो कृष्ण प्रेम है ना, ये इतना ज्यादा रसीला है जो कि हम कभी रियलाइज ही नहीं कर पाए। हम बस हरे कृष्ण जप करते हैं, क्योंकि हरे कृष्ण का अर्थ क्या है? हम भगवान श्री कृष्ण को विरह में पुकार रहे हैं कि कृष्ण, हे राधा कृष्ण, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृपया मुझे इस भौतिक संसार से उद्धार करिए और मुझे अपनी सेवा दीजिए। हम हमेशा जो संसार दावानल है, सुबह से जितने भी हम प्रेयर्स गाते हैं ना, उसका एक ही मीनिंग है कि हम प्रे कर रहे हैं, तुलसी महारानी से भी प्रे कर रहे हैं कि मुझे राधा कृष्ण का सेवा चाहिए। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र में भी हम वही मांग रहे हैं कि मुझे उद्धार करो हे भगवान, मुझे इस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं रहना, मुझे वापस जाना है तुम्हारे पास। देखिए, रियलाइज करिए कि हम कितने
एक खराब कंडीशन में है। रोज सुबह उठो, घर वालों का किचिर किचिर, या जो भी जहाँ पे रहते हैं किचिर किचिर सुनना पड़ता है, गुस्सा हो जाते हैं, इसने ये बोल दिया, उसने ये बोल दिया, इसने मेरे दिल को दुखाया, इसने ये बोल दिया मेरे को, ये मेरी बात नहीं सुनते, ये मेरा बात नहीं सुनता, मेरी मम्मी बात नहीं सुनती, मेरे पापा मर गए हैं, मेरी मम्मी मर गई है। आज मुझे खबर आया, नित्यानंद त्रयोदशी के शुभ अवसर पे मेरी एक माता जी है, फ्रेंड है, उनकी जो ग्रैंड मदर है वो चली गई, गुजर गई। तो वो अभी दुखी मुझे पूछा उन्होंने कि माता जी मुझे बहुत याद आ रहा है दादी माँ की, मैं क्या करूं। तो हर दिन हर पल 1 2 3 4 करके कुछ ना कुछ हम सह रहे हैं। हम कभी खुश नहीं है, भौतिक संसार इतना है। सोचिए कितने सालों साल तक भरे हम इस भौतिक संसार में बंधे हुए हैं, कितने सालों से, कितने जन्मों से, एक्चुअली कितने कष्ट सहे, कभी लड़का बने, कभी लड़की बने, कभी क्या क्या नहीं सहा है हमने। अभी इस संसार में आने से पहले भी जब हम हमारे मातृ गर्भ में थे तब भी हमने कितना कुछ सहा है। सोचिए आपको अगर कोई ऐसा उल्टा करके पकड़े, एकदम उल्टा, आपको पैर पकड़ लिया, आप उल्टे झूल रहे हो, फिर आपको ऐसा मरोड़ के आपको एक ऐसे थैले के अंदर भर दिया और उसके अंदर आपको बहुत सारा लिक्विड भर दिया और आपको लिक्विड के थ्रू, अपने मुख के थ्रू, वो नेवल से आपको खाना हो रहा है, अम्बिलिकल कॉर्ड से, कैसा लगेगा? सोचिए जो व्यक्ति हॉस्पिटल में रहता है वो ऑक्सीजन मास्क पहन के सोया रहता है, सलाइन चलता है, वो तो यहाँ से खाता है। और जो मम्मी के पेट में जब हम गर्भ में थे, हम यहाँ से खाते थे, वो अम्बिलिकल कॉर्ड वो एकदम लथपथ ये से होके रहते थे। जब देखा ना हम सब बड़े हो गए, हम सबको पता है जब बच्चा जन्म लेते तो बच्चा रोता क्यों है कि ए भगवान इतना कष्ट हो रहा है मेरे इस थैले के अंदर बैठे। जब उसको निकाल देते हैं ना तो वो तो रो भी नहीं पाता, उस थैले के अंदर जब वो रहता है, वो पूरा लिक्विड भरा रहता है तो रो भी नहीं पाता, और उसको आजाद कर दिया तो रोता है, हाय कितना कष्ट सहा मैंने। तो उतना कष्ट सहा है, बट भूल गए हैं हम, भगवान की कृपा से भूल गए, वरना उसी चीज को लेकर ट्रॉमेटाइज रहते, कितना कष्ट मैंने सहा है। जो हिटलर थे, हम सबको पता है, जो हिटलर थे वो क्या करते थे, वो लोगों को कैसे मारता था, एक कमरा होता था, बंद कमरा, उसमें एकदम पॉइजनस गैस छोड़ के वो मारता था लोगों को। कितना कष्ट होता होगा, सोचिए। ऐसे कितने जन्मों तक, हो सकता है हम में से कोई हिटलर के टाइम पे था जो हिटलर के उसने अत्याचार से मर गया होगा, अभी फिर वापस से उसने जन्म लिया है, कितने कष्ट है। तो जब एक कुत्ता होता है, हम कुत्ते को लात मारते हैं, हट हट हट, कोई से प्यार नहीं करता। हाँ कुछ लोग होते हैं जो कुत्ते को जाके सहलाते हैं, पर कितने टाइम के और कितने लोग करते हैं, सब लात मारते हैं, ऐसे फेंक के देते हैं बिस्किट। सोचिए आपको वहां पे खड़े और आपको कोई खाना दे रहा है, कैसे दे रहा है, फेंक के दे रहा है, ऐसे बिस्किट उसमें फेंक दिया, फेंक के दे रहा है, आपको कैसा लगेगा? वो वही 2-3 बिस्किट खाता है और बाद में भूख लगती है ना, वो डस्टबिन से खाता है, बिकॉज खाना है ना, पेट चलाना है ना। कभी हम कुत्ता बने, कभी कछुआ बने, कभी व्हेल बने, कभी शार्क बने, कभी छोटी मछली बने, शार्क ने हमको खा लिया, कभी हमने किसी और छोटी मछली को खाया। कभी शार्क व्हेल को कैसे मारता है पता है? इतना बड़ा बड़ा मोटा मोटा लोहे का पॉइजनस रॉड फेंक के मारता है, उसके अंदर चला जाता है, पॉइजन पूरा शरीर में भर जाता है, मर जाता है। ऐसे हम 84 लाख योनियों में भटकते भटकते आज इस मटेरियल वर्ल्ड में वापस इंसान के रूप में आए हैं। सारे कष्ट हमने सहा, बट भगवान ने हमको कृपा किया, हमको बुलवा दिया और यहाँ पे आए हैं। और नित्यानंद प्रभु की जो नाम है, इतना ही हमको सुनाई दे रहा है कि निताई, हम बोल पा रहे हैं, हम गूंगे नहीं है, गूंगे बहरे नहीं है। हमारे कुछ कृपालु भक्तगण हैं जिन्होंने बहुत रिसर्च करके जो गूंगे बहरे लोग हैं उनके लिए साइन बनाया है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे कैसे करते हैं। तो मैंने देखा था, फिर भूल गई, वो ऐसे करते हैं हरे कृष्ण ऐसा करके कुछ, वो अपने हाथों के मुद्राओं द्वारा हरे कृष्ण नाम जप करते हैं। फिर निताई निताई ऐसे, निताई गौर हरि बोल ऐसे वो करते हैं। तो ऐसे कुछ साइन लैंग्वेजेस होते हैं। तो उन्होंने इतनी कृपा करके गूंगे बहरे लोगों के लिए भी उन्होंने, जिससे कि वो हरे कृष्णा निताई और गौरांग का नाम ले सके, उन्होंने साइन लैंग्वेज बनाया है। बट हमको देखिए, हम गूंगे बहरे नहीं है, हम इस मटेरियल वर्ल्ड में आए हैं, इतनी कृपा हम पे हुई है कि हम नित्यानंद गौरांग का नाम ले सकते हैं, हम हरे कृष्णा नाम ले सकते हैं।
फिर भी हम इतने पतित जीवात्मा है कि हम नाम नहीं लेते, हम सोचते हैं यार क्या ये हरे कृष्ण वामन से है। चैतन्य चरितामृत में और भागवत में हर जगह पे ये वर्णना है कि अगर कोई एक बार नित्यानंद प्रभु का नाम सुन तक लेता है, वो दोबारा इस भौतिक संसार में नहीं आता, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का नाम इतना करुणामय है कि उनके नाम सुनने मात्र से ही वो तर जाता है। तो इसीलिए मेरे गुरु महाराज, मेरे परम पूज्य गुरु महाराज, वो जब भी कहीं पे जाते हैं वो इतना यही कोशिश करते हैं कि व्यक्ति को एटलीस्ट निताई गौरांग का नाम एक बार जिंदगी में उच्चारण करवा सके, बोलते हैं। तो एक बार वो बांग्लादेश में गए थे और बांग्लादेश में उन्होंने जाके एक मुस्लिम लड़के को बोला था कि हरे कृष्णा बोलो, तो उसने हरे कृष्णा नहीं बोला। मैंने बोला नहीं, मैं नहीं बोलूंगा हरे कृष्णा। तो अपने घर में गया, अपनी मम्मी को बोला, पता है मम्मी, वो एक साधु बाबा जी आए थे ना, उसने मेरे को बोला हरे कृष्णा बोलो। मैंने हरे कृष्णा नहीं बोला। उसने मम्मी बोला है तेरे को हरे कृष्णा बोलने को बोला? उसके पड़ोस वाले क्या 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 कौन सा साधु बाबा आया था हरे कृष्णा बोलने को बोला? तो अच्छा हुआ तूने एकदम हरे कृष्णा नहीं बोला, हरे कृष्णा बिल्कुल नहीं बोलना। ऐसे जो हरे कृष्णा वो लोग उच्चारण कर रहे हैं, ऐसे वो हरे कृष्णा जो ये नाम है इसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो हमारे लाइफ में गुरु का बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस है कि विदाउट गुरु वी विल नेवर गेट अ चांस टू गेट द लोटस फीट ऑफ श्री कृष्णा। और गुरु के बिना तो हमें भगवान श्री कृष्ण का सर्विस तक नहीं मिलता, तो बिना गुरु के कैसे क्या मिलेगा। और जिन हमारे जितने भी गुरु महाराज हैं या जिनके ये शिला प्रभुपाद हैं, ये नित्यानंद प्रभु का मर्सी है, ये भी गुरु तत्व है जो कि नित्यानंद प्रभु के ही एक्सपेंशन है। इस भौतिक जगत में आए हैं हम लोगों के ऊपर करुणा बरसाने के लिए, ताकि हम भगवान के श्री चरण में वापस जा सके। तो अब हम जाते हैं वापस उस टाइम पे 14th सेंचुरी में, जब नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ था। नित्यानंद प्रभु करीब 13 साल बड़े थे भगवान चैतन्य महाप्रभु से। तो हम जाते हैं, सब लोग अपने आंखें बंद करिए और चलिए हम वापस एक चक्र धाम में, वेस्ट बंगाल के राढ़ देश, वेस्ट बंगाल के एक चक्र धाम में, जहाँ पे नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ था बहुत सालों पहले 14th सेंचुरी में। चलिए हम जाते हैं, और अगर आप चाहते हो कि नहीं और को भी उस एक चक्र के स्थान पे वापस ले जाने को, तो उसको भी बुलाइए ताकि हम सब साथ में मिलकर भगवान की इस कथा में जुड़ सके। तो नित्यानंद प्रभु, उनके दादाजी, एक व्यक्ति था जिनका नाम था ओझा। वो व्यक्ति बहुत बहुत प्रयत्न करने के बाद भी वो बच्चा प्राप्त नहीं हो रहा था उनको। बहुत ज्यादा उसने कोशिश करी, जितने भी बच्चे हो रहे थे उनके सब सब मर रहे थे। उनको पता नहीं क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसने क्या किया, विष्णु की उपासना करनी स्टार्ट कर दी। तो उन्होंने विष्णु से प्रार्थना किया कि हे नारद, मुझे एक ऐसा व्यक्ति दीजिए जो कि बहुत ज्यादा भगवान के भक्तों के प्रति डेडिकेटेड हो, भगवान के प्रति डेडिकेटेड हो, आप कृपा करें। तो उन्होंने बहुत तपस्या करी, और बहुत तपस्या के बाद उनके घर में पैदा हुए हडानंदा। और बहुत उल्लास कि इतना तेजस्वी ओजस्वी लड़का, इतना सुंदर, कैसे कोई हो सकता है। सब बहुत खुश हो गए। ओझा और उनकी पत्नी बहुत ध्यान रखते हडानंद का, और उनका नाम हुआ हडानंद। बट जैसे कि हम सब घर में रहते हैं, हमारा कोई एक स्पेसिफिक नेम होता है, बट हम सबको निक नेम से बुलाया जाता है। तो उनको निक नेम से बुलाया जाता था हडाई ओझा। तो अब जो हडाई ओझा थे, इनका जब बड़े हो रहे थे, इनके अंदर भक्ति मूलक बहुत सारी जो क्वालिटीज है वो पैदा हो रही थी। ये बहुत ज्यादा डेडिकेटेड थे भगवान के भक्तों के प्रति, भगवान के भक्तों की बहुत सारी सेवा करते थे, और बहुत ज्यादा ज्ञानी भी थे, ये बहुत स्कॉलरली डिवोटी थे। And used to serve Vaishnavas. He has very nice service attitude towards all the devotees and towards the Lord. ये बहुत ज्यादा डेडिकेटेडली भगवान की सेवा करते थे, तो इसीलिए उनका नाम पड़ा हडाई पंडित, सबने उनका नाम दिया। तो ये जो हडाई पंडित है, ये अब बड़े हो गए, एंड अब इनका शादी करवाना था।
तो बहुत ही ऑपुलेंट, एक तेजस्वी ओजस्वी लड़की जो भी भगवान की शुद्ध भक्त है, उनसे हड़ाई पंडित का विवाह करवाया गया, जिनका नाम है पद्मावती देवी। पद्मावती देवी, शी इज ऑल्सो वेरी वेरी डिवाइन पर्सनालिटी, शी इज वेरी डिवाइन वैष्णवी, भगवान की बहुत डेडिकेटेडली सेवा करती हैं। एंड इन दोनों का विवाह हुआ। एंड विवाह के बाद जैसे एक प्रॉपर आइडियल गृहस्थ को अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, वैसे ही ये पद्मावती देवी और हराई पंडित अपना जीवन व्यतीत करने लगे, भक्तों की सेवा करके, भगवान की सेवा करके। कुछ समय बाद जो हराई पंडित है, इनके जो पिता एवं माता दोनों ने अपना शरीर त्याग कर दिया, और इनका जितना भी जो वेल्थ था, जो धन संपत्ति था, सब कुछ हराई पंडित और पद्मावती देवी ने एक्सेप्ट किया। उनका जो फाइनल राइट्स था वो उन्होंने बहुत अच्छे से, बहुत ऑपुलेंटली उन्होंने पालन किया। उसके बाद उन लोगों जो एक चक्र धाम है, वहां पे एक स्कूल भी खोला जहाँ पे वो बच्चों को सिखाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे। तो ये जो पंडित और पद्मावती देवी है, ये एक चक्र धाम का जो सोसाइटी है, उस सोसाइटी का एक लीडर जैसा बन गया कि हाँ, कुछ भी हो तो कोई हराई पंडित उनके पास जाता, उनके सोल्यूशन लेता। तो ये दे आर लाइक गार्जियन ऑफ एक चक्र धाम। तो जब वो स्कूल में पढ़ाते थे तो उनका भी बहुत मन हुआ कि हमको भी एक बच्चा चाहिए जो कि भगवान का शुद्ध भक्त बनेगा, जो कि भक्तों की इतनी सेवा करेगा, एक परफेक्ट पुत्र बनेगा, भगवान की डेडिकेटेडली सेवा करेगा, कंटिन्यूस उसके मुख में भगवान का नाम रहना चाहिए, वो पागल होना चाहिए भगवान की शुद्ध भक्ति में। तो उनका इच्छा हो कि मुझे एक पुत्र चाहिए। तो यहाँ से हमें सीख मिलती है कि जो गृहस्थ कपल्स है, ड्यूटीज है, वो जब गृहस्थ आश्रम में एंटर कर रहे हैं, उनका क्या मोटिव होना चाहिए? उनका दो मोटिव होना चाहिए, एक तो भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा करना, और दूसरा एक कृष्णा कॉन्शियस जो चाइल्ड है उनको लाना इस भौतिक संसार में, ताकि वो भगवान का सेवा कर सके। तो हराई पंडित और पद्मावती देवी एज अ आइडियल कपल, they started doing sadhana, they started praying to Lord for a child who is mad for Krishna, who is mad for the devotees of Krishna, who is so opulent that उसको देख के लोग कृष्ण का नाम ले सके। So they prayed to and prayed to महादेव की, हे महादेव आप तो परम वैष्णव हो। वहां पे एक प्रॉपर विग्रह जो कि आज भी है, जिनका नाम है मौरेश्वर महादेव, मौरेश्वर शिव। तो उनको उन्होंने प्रे किया, जो कि बहुत जागृत एक डीटी माने जाते हैं महादेव के, जिनको अगर हम कुछ प्रे करते हैं तो वो जरूर फुलफिल होता है। उनको प्रे करवाया गया। एंड ऐसा इसके बाद हमारे नित्यानंद प्रभु का अपीयरेंस हुआ। तो नित्यानंद प्रभु के अपीयरेंस के कथा में जाने से पहले हम हड़ाई पंडित और उनके पिताश्री के जन्म से पहले की एक छोटी कहानी में जाते हैं, जहाँ पे नित्यानंद प्रभु के अपीयरेंस एक चक्र में होने का वर्णन उन्हीं एक चक्र में एक एस्ट्रोलॉजर ने किया था। जो एक चक्र धाम है, वहां पे एक एस्ट्रोलॉजर थे। उन एस्ट्रोलॉजर ने एक दिन वो आए, उन्होंने सबको बोला कि वो धामवासी, वो एक चक्रवासी, मुझे आज एक बहुत ही अद्भुत चीज पता चली है जो कि इस एक चक्र से रिलेटेड है। सब आए कि क्या है। वो एस्ट्रोलॉजर जो थे ना, वो मतलब बहुत ही एक्यूरेट एस्ट्रोलॉजी बताते थे। तो सब आए, कुछ इम्पोर्टेंट होगा कि वो तो कभी झूठ नहीं बोलते। सब आए, उन सब ने बोला कि क्या हुआ। तो जो एस्ट्रोलॉजर था, एस्ट्रोलॉजर बोलने लगा कि मैंने आज गणना करके मैंने ये देखा कि कुछ सालों बाद इस एक चक्र धाम में जो नित्यानंद प्रभु है, जो बलराम है, जो कृष्ण के अग्रज भ्राता है, वो आएंगे इस धराधाम पे, स्वयं भगवान आएंगे इस धराधाम पे। पर हे भगवान, हे कृष्ण, हे एक चक्रवासी, हे वैष्णवगण, मैं इतना पापी हूँ, इतना पाखंडी हूँ कि मैं नहीं देख पाऊंगा
कि मैं तब तक नहीं रहूंगा। और वो रोने लगे, बिलखने लगे सबके सामने। तो सबने बहुत अप्रिशिएट किया कि हाँ, बस ऐसा ही भाव रहना चाहिए भगवान के प्रति, कि भगवान का दर्शन ना करके हम विरह में रहेंगे। तो ये तो चल रही है हमारी कथा कि वहां पे एस्ट्रोलॉजर ने बोला। और कुछ बहुत सालों बाद ओझा हराई पंडित के पैदा होने के बाद हराई पंडित की शादी हुई एंड अब नित्यानंद प्रभु पैदा होंगे। और आप सबको पता है ये जो कथा है, ये कथा कहाँ से मैं बता रही हूँ, ये भक्ति रत्नाकर ग्रंथ है। भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में ये कथा आ रही है। और ये कथा कौन बोल रहा है? ये कथा बोल रहे हैं एक चक्र के ही एक वासी, एक चक्र के एक निवासी जो कि नित्यानंद प्रभु के जाने के बाद विरह में है। एंड ये वो व्यक्ति जो जानवा माता है, जानवा माता को वो बता रहे हैं। जानवा माता कहाँ से आई? Janva Mata, she is the eternal consort of Nityanand Prabhu. She is the guru, she is the initiating spiritual master. So नित्यानंद प्रभु के जाने के बाद जो ये हमारा जो प्रीचिंग का जो परंपरा ये चल रहा था, ये रुक गया क्योंकि अब महाप्रभु नहीं, नित्यानंद प्रभु नहीं है। Then जानवा माता, the glorious eternal consort of Shri Nityanand Prabhu, she started that preaching movement and उनके जो बेटे हैं श्री वीर चंद्र गोस्वामी, वो भी प्रीचिंग करते थे। एंड ये जो जानवा माता है, ये जानवा माता ने बहुत सारे जो व्यक्ति हैं उनको इनिशिएट भी किया। इनफैक्ट वीर चंद्र प्रभु जो उनके ही बेटे हैं उनको भी इनिशिएट किया। एंड इनिशिएट करके वो अब खेतुरी ग्राम होके, खरदाह होके अब वो पहुंचे एक चक्र में कि मैं अपने पति का जो निवास स्थान है वो मैं दर्शन करने जाऊंगा। तो जब जानवा माता पहुंचे ये एक चक्र धाम में, तो देखा कि एकदम रूखा सूखा पड़ा है, कोई कुछ मतलब सब एकदम रूखा है, कोई नहीं है इस ग्राम में, सब खाली खाली। तो गए अपने जो डिसाइपल्स के साथ, उन्होंने देखा कि एक जो बूढ़ा व्यक्ति, वो बूढ़ा व्यक्ति आ रहा है चलते चलते, एक उनके हाथ में एक लाठी है और वो चलते चलते आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं इस एक चक्र धाम का निवासी हूँ और मुझे पता है कि यहाँ पे नित्यानंद प्रभु है। और ये जो वैष्णव है, इन्होंने बोला कि आप हमें कृपया बताइए कि नित्यानंद प्रभु की जो लीलाएं हैं एक चक्र में, आप कृपया करके बताएं। तो व्यक्ति वो वर्णना करना स्टार्ट किए। उन्होंने बोला कि उन्होंने पहले वर्णना करना स्टार्ट किया यहाँ से कि ये जो एक चक्र है, हाउ ग्लोरियस दिस एक चक्र धाम इज। एक चक्र इज नॉट ओनली फेमस फॉर नित्यानंद प्रभु, बट एक चक्र में जो श्री कृष्ण के बहुत ही प्रिय पांडव थे वो भी थे। हम सब महाभारत में ये कथा सुनते हैं कि एक असुर था, बकासुर नामक एक असुर था। ये वो बकासुर नहीं है जो कृष्ण के टाइम पे थे, कृष्ण को जिन्होंने अटैक करना चाहा कंस मामा के द्वारा। ये दूसरे एक बकासुर थे जो कि एक चक्र धाम में आए थे। तो वो आके वो क्या करना स्टार्ट किया, वो असुर, वो जो जितने भी रेजिडेंट्स थे एक चक्र धाम के, वो एक चक्र धाम के रेजिडेंट्स को उठा उठा के खाने लगा। ही वाज अ कैनिबल, ही यूज्ड टू ईट मैन देयर। सो जो एक चक्र के जो वासी थे, उन्होंने वो सब मिलके उन्होंने एक कंसल्टेशन करी कि लेट्स गो टू दैट असुर एंड वी विल रिक्वेस्ट हिम कि हम हर हफ्ते एक व्यक्ति को भेजेंगे, नहीं सॉरी, हर दिन एक व्यक्ति को भेजेंगे एज अ ऑफरिंग टू हिम, एंड उसके साथ हम बहुत सारा फ्रूट्स वगैरह वगैरह और भी भोजन की चीजें भेजेंगे और वो सब कुछ उसका होगा। तो 2 गाय 2 बैल होंगे एंड वो व्यक्ति होगा एंड उसके साथ और भी कुछ खाद्य पदार्थ रहेंगे। तो एवरी डे one man he used to go there and that demon used to eat that man and all the offerings given to him. So जैसे कि वनवास में थे पांडव, तो पांडव विजिटेड एक चक्र, जैसे वो अपने डिस्गाइज में थे कि वो किसी को नहीं बताएंगे, तो अपने उस टाइम में वो थे वहां पे, वो गए एंड वो एक माता जी के घर में रहते थे। उन माता जी और माता जी का एक बेटा रहता था। सो पांडव एंड कुंती महारानी यूज्ड टू स्टे देयर। अब उस टाइम पे ऐसा चल रहा था, तो एक दिन हर
एक घर से एक एक व्यक्ति को ले जाया जाता था। उस दिन, उस पर्टिकुलर डे में खबर आई कि जो वो माता था, जो माता जी थी जिनके घर में पांडव रह रहे थे, the son of that माता जी, it's his turn to go as an offering to that demon. तो अब माता जी वो रोने लगी कि मेरा तो कोई नहीं है, एक बेटा ही है, अब उसको जाना पड़ेगा। तो कुंती देवी, she went to that माता जी and she told, okay, I have my 5 sons and you have only 1. So तुम्हारे अपने बेटे को देने से अच्छा है कि मैं अपना एक बेटा दे दूं, तो तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि मेरे तो 5 बेटी थे। That माता जी, she told, no, मुझे पता है पुत्र खोने का कष्ट क्या है, तो आप मत दीजिए, मेरा बेटा ही जाएगा, क्योंकि कर्म को हम कितने देर तक रोक सकते हैं, कितने दिनों तक हम मृत्यु को रोक सकते हैं, कर्म फल को रोक सकते हैं। सो लेट हिम गो, नो नीड कि आपके बेटे को भेजना है। तो कुंती देवी ने कहा, नहीं, आप समझे नहीं, मेरे सारे बेटे बहुत शक्तिशाली है, बहुत बलवान है, और उनमें पर्टिकुलरली वन ऑफ माई सन, ही इज वेरी पावरफुल, उसके अंदर सहस्त्र हाथियों का बल है, एंड ही विल गो एंड ही विल किल दैट डीमन। सो कुंती देवी, उन्होंने भीमसेन से रिक्वेस्ट किया, भीमसेन बिकेम वेरी एक्साइटेड कि भीमसेन 2 चीजों में एक्साइटेड रहते थे। क्या क्या 2 चीज? एक चीज है कि भीमसेन जब उनको भोजन दिखता था, भोजन देकर बहुत एक्साइटेड हो जाते थे। कुंती देवी ने ये भी मेंशन किया था कि मेरा जो बेटा है, हम सबको जब भोजन मिलता है मधुकरी करके, तो उस भोजन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। वन पार्ट इज फॉर मी, Arjun, Yudhishthir, Nakul and Sahadev, and another part is totally for Bhimsen, because he used to eat a lot. He is known as Vrigodara. तो कुंती देवी ने, अब भीमसेन 2 चीजों को बहुत ज्यादा खुश हो जाते थे, एक्साइटेड हो जाते, 2 चीज सुन के। एक है भोजन का नाम, और दूसरा जब किसी को पिटाई करने का आता था ना, जब खराब लोगों को नहीं, ऑब्वियसली नॉट डिवोटीज, नॉट अच्छे लोगों को नहीं पीटते थे जाके, वो बुरे आदमियों को पीटते थे, ऐसे असुर लोगों को पीटते थे। उसने ही बिकेम वेरी एक्साइटेड कि अब मजा आएगा, इतने दिनों बाद किसी को पीटेंगे हम। तो भीमसेन he took a cart with 2 bulls, and कार्ट में बहुत सारा भोजन का सामग्री था, फल मूल एक्सेट्रा, प्रसादम बहुत सारा था। एंड he went to the forest, he went to the cave, and cave में जाते जाते वो जो जा रहे थे, गाय चराते थे, तो उन्होंने अपना अंदर का जितना भी सारा भोजन था सब कुछ खा लिया। And when Bhimsen went to the cave of that बकासुर बाहर आया, बकासुर ने देखा सब खा लिया इसने। तो he felt very embarrassed, और उसको harassed फील होने लगा कि मेरा ऑफरिंग खा लिया इसने, इस मनुष्य ने। बहुत गुस्से में आ गया, उसको ईगो हर्ट हो गया, तो वो भीमसेन के ऊपर अटैक करने लगा। एंड भीमसेन वाज ईटिंग द प्रसादम, एंड भीमसेन एक हाथ से उस असुर से फाइट कर रहे थे, एक हाथ तो आराम से प्रसाद खा रहे थे। तो दिस इज भीमसेन, उनको 2 चीज चाहिए, एक है पिटाई, युद्ध, और दूसरा भोजन। तो भीमसेन उसको मार रहा था एक हाथ से, एक हाथ से वो भोजन कर रहा था, ऐसे उसने उस असुर को मार दिया। एंड ही केम बैक, ही टोल्ड हिज मदर दैट मैंने मार दिया। अब उनकी मम्मी ने कहा, क्योंकि हम वनवास में हैं और ये पता नहीं चला था कि हम यहाँ पे हैं, तो इसके लिए जो वो माता जी थी, माता जी के बेटे को उन्होंने सारा श्रेय दे दिया कि तो जाके बोलोगे कि तुमने मारा है, ताकि हम लोग रिवील ना हो जाए। So this was a लीला, this beautiful pastime happened in the place एक चक्र। तो this is the glories of एक चक्र धाम, कि वहां पे पांडव जो भगवान के शुद्ध भक्त थे वो भी गए थे। And this story was recited, narrated by that old Brahman who used to stay there in Ek Chakra. He was narrating this pastime to Janva Mata, eternal consort of Shri Nityanand Prabhu. तो यही जो व्यक्ति है, इसके बारे में बोला कि जब मेरे जो पूर्वज थे उनके टाइम में, या मैं जब छोटा था उस टाइम, ये जो एस्ट्रोलॉजर थे, इन्होंने ये गणना करके बोला था कि हाँ, भगवान स्वयं श्री कृष्ण अवतरित होंगे। वाई श्री कृष्ण? बिकॉज बलराम जी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। एक ही दो है, एक ही देह दो है, भिन्न मात्र का है। जस्ट द complexion of Balaram is different from Krishna. He is of white complexion and Krishna is of घनश्याम complexion, black complexion, bluish black complexion. So
हाँ, अब ओझा जो थे, ओझा का पुत्र नहीं हो रहा था, तो प्रे किया उन्होंने भगवान से, विष्णु से, एंड ही गॉट अ वेरी ऑपुलेंट, एंड दिस इज रिसाइटेड बाय दैट ओल्ड ब्राह्मणा. So devotees, please go into that एक चक्र, into that pastime when जानवा माता को ये जो ब्राह्मण है एक चक्र धाम की ये रिसाइट कर रहे हैं, ये बता रहे हैं ये लीला. तो भडाई पंडित, an opulent son of ओझा, he got married to the Vaishnavi named Padmavati Devi, and now they are praying to Maureshwar Mahadev that please, oh महादेव, मुझे हमें एक ऐसा बच्चा दीजिए आप जो कि भगवान का शुद्ध भक्त हो, जो कि कृष्ण प्रेम में पागल हो. एंड उन्होंने इतनी सुंदर सुंदर कैरेक्टरिस्टिक्स बताई कि मैं क्या कैसे बताऊं आप सब डिवोटीज को. तो और इतना सुंदर कैरेक्टरिस्टिक्स किसका ही हो सकता है भगवान के सिवाय. तो यस, श्री नित्यानंद प्रभु ऑन द डे ऑफ टुडे, बहुत सालों पहले, और 14th सेंचुरी, बहुत सालों पहले, आज के दिन में नित्यानंद प्रभु पैदा हुए, एक चक्र अपीयर हुए, एक चक्र धाम में, फ्रॉम द गर्भ ऑफ पद्मावती देवी. सो दुखी कृष्ण नाम, दुखी कृष्णदास नामक एक बहुत ही सुंदर डिवोटी है, आचार्य है. उन्होंने एक प्यारा सा सॉन्ग लिखा है, वो सॉन्ग मैं नरेट करूंगी जो कि हमारे बहुत ही परम पूज्य अमरेंद्र प्रभु जी से मैंने सुना. सो आई वुड लाइक टू शेयर यू ऑल दैट सॉन्ग. रारदेश नाम एक चक्र ग्राम, हडाई पंडित घर. रारदेश नाम एक चक्र ग्राम, हडाई पंडित घर. शुभ माघ मासी शुक्ला त्रयोदशी, जन्मिले नालधार. शुभ माघ मासी शुक्ला त्रयोदशी, जन्मिले नालधार. रारदेश नाम एक चक्र ग्राम, हडाई पंडित घर. हडाई पंडित अति हर्षित, पुत्र महोत्सव करे. हडाई पंडित अति हर्षित, पुत्र महोत्सव करे. धराणि मंडल करे तदमल, आनंदनाई कुधारे. धराणि मंडल करे तदमल, आनंदनाई कुधारे. What is the translation of this song? राड देश नामो. What is राड देश? ये बंगाली को भी नहीं पता होगा. So I asked one of my senior sister. She is very senior. She is like more than 20 years in Krishna consciousness. She got initiated when she was only 6 years old. So I asked her that what is राड देश? तो उन्होंने बोला कि जो अभी है ना, हम लोग पढ़ते हैं इंडिया, वेस्ट बंगाल एक्सेट्रा, उस टाइम पे ये सब नाम नहीं था. उस टाइम जो बंगाल था इसको राड देश कहा जाता था. तो राड देश मतलब राड देश वेस्ट बंगाल को कहा जाता है. राड देश नाम एक चक्र ग्राम, राड देश में एक चक्र नामक जो ग्राम है, जो विलेज है, उसमें हडाई पंडित के घर में, हडाई पंडित घरे. शुभ माघ मासी, आज का दिन है माघ मास का जो शुक्ल त्रयोदशी आज का दिन है. तो वो दुखी कृष्णदास बोल रहे हैं, शुभ माघ मासी शुक्ल त्रयोदशी, जन्मिले ना हलधर. कि कौन, किसने बर्थ लिया है? जन्मिले ना हलधर. हलधर
जो हल धरते हैं, यानी कि भगवान श्री कृष्ण के जो अग्रज कृष्ण है वो सॉरी अग्रज जो भ्राता है यानी कि बलराम, जिनको हलधर भी कहा जाता है, वो उन्होंने बर्थ लिया एक चक्र ग्राम में। एंड हड़ाई पंडित अति हर्षित, हड़ाई पंडित अत्यंत हर्षित है। क्यों हर्षित है? क्योंकि जो नित्यानंद प्रभु है वो जब बर्थ लिया, जैसे कृष्ण ने जब जन्म लिया था उन्होंने भगवान ने, so effulgence was coming out from his body. He was so beautiful. You all know how much beautiful Shri Krishna's body form is. So जैसे यशोदा माता एवं पूरा जो नंद गांव था वो कृष्ण को देखने के लिए दौड़ दौड़ते आ रहा था, इतना सुंदर दिख रहे थे नित्यानंद प्रभु। effulgence was coming out from his body. He was his softness, we can't compare his softness with any of these things in this material world. He was so soft. His beauty, उनका जो रूप है वो एकदम उभर के आ रहा था। That I can't explain this. We can say that one of his cell of his body can be compared to Koti Chandra. He was so beautiful. So हड़ाई पंडित अति हर्षित कि उनका जो उन्होंने जो मांगा था भगवान से, शिव से, कि I want an opulent son who will be Krishna conscious, who will be mad for Krishna. I want that son. So he got that son. So हड़ाई पंडित अति हर्षित पुत्र महोत्सव करे। He was doing, जैसे कृष्ण के पैदा होने के बाद अगले दिन नंद महोत्सव हुआ था, नंद उत्सव हुआ था। नंद महाराज ने गाय वितरण किया था, 9 लाख गाय उन्होंने चैरिटी में दे दिया था ब्राह्मणों को। So he was डूइंग महोत्सव, निताई महोत्सव, नित्यानंद प्रभु का जन्म महोत्सव मना रहे थे। सो हड़ाई पंडित अति हर्षित पुत्र महोत्सव करे, धरणी मंडल पूरे तलमल आनंद नहीं को धरे। जो धरणी मंडल है यानी कि जो ये भूमि माता है, ये तलमल कर रहा है, ये हिल रहा है। एंड क्योंकि क्यों हिल रहा है? आनंद में हिल रहा है, ये कांप रहा है। धरनी इतनी खुशी है उनके हृदय में अभी कि नित्यानंद महाप्रभु वो उन्होंने बर्थ ले लिया है। अब इस कलयुग में, क्योंकि जब त्रेता युग में जब भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए थे, दैट टाइम भूमि देवी शी वेंट टू विष्णु विथ ऑल द गॉडेस। तो उन्होंने क्या बोला कि ये मेटीरियल वर्ल्ड में बहुत पाप हो रहा है, ये सॉरी त्रेता युग में, द्वापर युग की बात है, इतना पाप हो रहा है कि प्रभु आप अवतरित होइए, कृपया मेरे ऊपर से ये जो पाप का बोझ है इसको उतारिए। सो रिमेम्बर डिवोटीज, दिस इज कलयुग। कितना पाप हो रहा था, जगाई मधाई जैसे कितने लोग थे। एंड जो धरणी देवी है, शी इज crying that oh now the Lord, servant of the Lord has appeared. The Lord of the universe has appeared actually. The Savior Godhead, Supreme Personality of Savior Godhead has appeared. It is Nityanand Prabhu in the house of हड़ाई पंडिता। अब इस दुनिया में कोई भी पापी व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि नित्यानंद प्रभु वो किससे जारे देखी तारे कहा कृष्ण उपदेश। नित्यानंद प्रभु will distribute the कृष्ण प्रेम to all the पापीज, all the पापी। हम जैसे पापी, हमने कितने पाप नहीं किया, हम जैसे इतने पापियों को नित्यानंद प्रभु हरि कथा गिफ्ट में देके, गुरु को हम हमारे लाइफ में भेज के वो हम सबको उद्धार करेंगे, हम सबको गोलोक ले जाएंगे। So now finally भूमि देवी is so happy कि finally नित्यानंद प्रभु has appeared. Now this whole material world will be delivered at the lotus feet of Lord Shri Krishna. So वो अत्यंत आनंद से उनका हृदय टलमल कर रहा है। धरणी मंडल कोरे टलमल आनंद नहीं को धरे। उनका जो आनंद है, आनंद सीमा नहीं, निरानंद दूर, जो उनका जो ये आनंद है ये वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एंड क्या सिर्फ एक चक्रवासी और धरणी देवी हड़ाई पंडित यही कुछ है? नहीं, कृष्णदास कविराज गोस्वामी आगे भी बता रहे हैं, सॉरी दुखी कृष्णदास आगे भी बता रहे हैं। शांतिपुर नाथ, शांतिपुर कौन सा था? शांतिपुर में श्रील अद्वैत आचार्य, अभी अद्वैत आचार्य का प्रिंस से गया। शांतिपुर नाथ मने हर्षित करी কিছু অনুমান, অন্তরে জানিল বুঝে জনমিল
कृष्णेरायाग्रज रामो वैष्णवेर मन হইল প্রসন্ন আনন্দ সাগরে ভাসে কবে পাগল হইবে উদ্ধার কহে দুঃখী কৃষ্ণ দাসে। So Dukhi Krishna Das is telling Shantipuranath, the Lord of Shantipur, the Lord of Shantipur is Advaita Acharya. The Lord of Shantipur, he smiled in his heart. Mone Harshita. He is smiling, continuously smiling in his heart. Why? करे किछु अनुमान, उन्होंने कुछ अनुमान किया। क्या अनुमान किया? अंतर जान लो, अपने हृदय में उन्होंने जाना कि बुझे जानवी लो कि वो किन्हीं ने तो जन्म लिया है। जो कौन है? कृष्ण अग्रज राम, कृष्ण के जो अग्रज भाई हैं, अर्थात राम क्यों बोला? नित्यानंद राम। नित्यानंद प्रभु का नाम है नित्यानंद राम। कृष्ण अग्रज राम, गौरांग महाप्रभु के अग्रज राम। एंड वैष्णव रमाना, जो एक चक्र, जो हम एक चीज डिवोटीज में बहुत ही सीरियस आप सबसे बता रही हूँ, हम जो धाम में जाते हैं ना, लाइक मायापुर, वी गो टू मायापुर, इफ someone is from Bangladesh, they went to Kheturi and other places in धाम, जो महाप्रभु जहाँ पे लीला किया है उन्होंने। सो हम जाते हैं ना, हम सोचते हैं कि those devotees who are staying there, if they are not from Gaudiya Vaishnava परंपरा, then कभी-कभी थोड़ा श्रद्धा आता है मन में कि अरे बाबा, ये व्यक्ति तो ठीक से सेवा पूजा नहीं करता, कैसे भगवान को रखा हुआ है इन्होंने। But devotees, please never offend those Vaishnavas, because वो जैसे भी हैं, we should never judge them because they took birth in the धाम। वो भगवान के पार्षद है, they are continuously serving। जैसे कि जगन्नाथ के पंडों को बहुत लोग जज करते हैं, यार ये तो चीटिंग करते हैं, ये करते हैं, तो ये करते हो करते हैं, we judge them। ये तो मच्छी खाते हैं, मच्छी खा के भगवान को पूजा करते हैं, कैसे लोग हैं? We follow all four regulative principles: no intoxication, no gambling, no illicit sex, no meat eating, and look at them, क्या मच्छी खा के जगन्नाथ जय जगन्नाथ कर रहे हैं। So sometimes we offend devotees, अरे यार धाम वासी हो कैसा कर रहे हैं। बट जितने भी लोग किन्हीं भी धाम में, छोटे से छोटे धाम में जहाँ पे भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु आए हैं, वहां पे आए हुए हैं, दे आर परम वैष्णव। वैसे दिख रहे हैं आपको, बट दे आर एक्चुअली द सर्वेंट ऑफ लॉर्ड। तो कभी ऐसा नहीं करना, कभी जज नहीं करना। सो यहाँ पे दुखी कृष्णदास बोले वैष्णवेर मना होइलो प्रसन्न, मतलब ऑल दोस एक्सट्रावासीज हु आर देयर, दे, उनका जो मन है वो प्रसन्न हुआ बहुत ज्यादा। वैष्णवेर मना होइलो प्रसन्न आनंद सागरे भासे, बोलो आनंद के जो सागर है, आनंद के समुद्र में वो, अब भासे का अर्थ है जब जो फ्लोट कर रहे हैं, आनंद सागर में वो फ्लोट कर रहे हैं हम। बट वो बोले कबे पामर होइबे उद्धार, कहे दुखी कृष्णदास से। बट दुखी कृष्णदास इज लैमेंटिंग एंड वी शुड लैमेंट। ही इज टीचिंग अस कि उनका कोई जरूरत नहीं है कि वो लैमेंट करे, बिकॉज़ ही इज अ प्योर डिवोटी ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा। बट ही इज टीचिंग अस दैट व्हेन वी आर चैंटिंग ऑल दिस वैष्णव भजन, हमारा ये मन होना चाहिए। सो he is telling that कबे पामर, when will this patit, pamara means papi or patit, when will this pamar hoibe uddhar, will be liberated by the merciful glance of Shri Nityanand Prabhu, कहे दुखी कृष्णदास से। तो हमारे भी ये भावना चाहिए कि कब नित्यानंद प्रभु के करुणामय दृष्टिपात हम पे होगा, हमको श्री गुरु का चरण, गुरु का सेवा मिलेगा, और कब हम भगवान के चरण कमलों में वापस जा पाएंगे। So this is a beautiful song recited by Amarendra Prabhu in his class, and sung is by Dukhi Krishnadas Acharya. So जो नित्यानंद प्रभु उन्होंने जन्म लिया, एक चक्रवासी, वो लोग कितने खुश हुए, आपको पता है, इतना खुश हुआ कि नित्यानंद प्रभु का जो अम्बिलिकल कॉर्ड था, अम्बिलिकल कॉर्ड आप सब समझ रहे होंगे, जो बच्चा होता है ना, मम्मी के गर्भ से जिस कॉर्ड से अटैच रहता है, सो उनके जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको लिया। कि अरे उनको भी नहीं पता, जैसे कृष्ण जब पैदा हुए थे, कृष्ण के जो ब्रजवासी थे, उनको नहीं पता था कि
उनको. He is the supreme personality of Godhead. They don't know, but they have so much affection for Shri Krishna that they used to treat him like their own child, and they used to love so much, so much. तो हम सबको पता ही है. Just like that, Shri Nityanand Prabhu, all the Ekchakravasis, they got too much attracted to Lord Nityanand Prabhu that they took the umbilical cord and they made a samadhi of that umbilical cord. And आज भी जो लोग एक चक्रधाम गए हैं, जाना चाहते हैं, to went there, आज भी वो umbilical cord वहाँ पे उसका समाधि है, जिसको नाम से पुकारा जाता है नारी नोट या तो अमरापीठ, ये दो नाम से जाना जाता है वहाँ पे. So if you go there, please went to that Nari Knot and offer obeisances to that umbilical cord which is attached to the Param Vaishnavi Padmavati Devi and Nityanand Prabhu's body. So it's like the body of Nityanand Prabhu. So इतना affection, सोचिए कि इतना प्रेम क्यों, क्या किया है, क्या हुआ है कि इतना प्रेम. सोचिए हम सबका umbilical cord का समाधि हो रहा है, हॉस्पिटल में था, वो डस्टबिन में कहाँ पे उसका क्या हो गया नहीं पता. So they have so much love for Nityanand Prabhu. और ये normal affection नहीं है. This is pure love. This is रागात्मिका भक्ति. If you have read the Nectar of Devotion, then this is known as रागात्मिका भक्ति. तो जो जितने भी एक चक्रवासी हैं, ये लोग इतना प्रेम करते थे नित्यानंद प्रभु से. Now, as Nityanand Prabhu has taken birth in एक चक्रधाम, अब क्या होगा, नेमिंग सेरेमनी होगा. अब नेमिंग सेरेमनी वैष्णव, बहुत सारे वैष्णव आए, सब लोग आए, एंड सबने दो नाम सजेस्ट किया. Some group of devotees, they told that his name should be Rama because Rama means the one who is giving pleasure, and Nityanand Prabhu is giving pleasure to all the devotees of एक चक्रधाम की. उनको देखने मात्र से लोग, हाय ये नित्यानंद प्रभु इतने सुंदर कैसे दिखते हैं, उनके नयन नक्श इतने सुंदर थे, उनका बॉडी से इतना सुंदर effulgence आ रहा था that we can't explain. So some of the group of devotees, they told that his name should be Rama, or the one who is giving pleasure. Some group of devotees, they told that his name should be Nityananda because he is continuously giving us Nityananda, matlab continuous, Nitya matlab continuous, and Ananda means pleasure. He is giving us continuous pleasure, continuous Ananda. So his name should be Nityanand, and not only he is giving us Ananda, he is also in Ananda. जैसे कि normal तो बच्चे उधर होते हैं, but Nityanand Prabhu is not like that. He is an exemplary child. So as Harai Pandit and Padmavati Devi, they prayed that I want an exemplary child who will preach Krishna consciousness throughout the whole world. So वो भी एक exemplary, ये जो एक जैसे महापुरुष जब आते हैं तो महापुरुषों का ये एक क्वालिटी होती है कि वो कभी ऐसे रोते नहीं है. जब वो पैदा होते हैं वो हंसते हंसते पैदा होते हैं. तो महाप्रभु he was also like that. तो वो नामे नित्यानंद, तुम्हें रूपे नित्यानंद, वो नाम में भी नित्यानंद है, वो रूप में भी नित्यानंद है. महाप्रभु ग्लोरीफाई करते हैं नित्यानंद प्रभु को इस श्लोक से, चैतन्यचरितामृत से. So Nityanand Prabhu was giving continuous pleasure and he was in continuous anand. So both the group of devotees gave this name Nityananda and Ram. And Harai Pandit and Padmavati Devi, as they are true Vaishnava, Vaishnava, so उन्होंने दोनों वैष्णव ग्रुप के नामों को एक्सेप्ट किया, and they named Nityanand Prabhu as Nityananda Ram. So thus Nityananda Prabhu was named as Nityanand Ram. And by time, जैसे हम सबका एक निकनेम हो जाता है घर में, ऐसे नित्यानंद निकनेम हो गया था निताई. So everyone used to call him Nitai. Where are you going? Oh Nitai, you are so beautiful. Nitai, let's go to play. So ऐसे नित्यानंद प्रभु का नाम हो गया. And this child Nitai, the effulgence coming from his body, this child Nityanand Prabhu was so gorgeous that all the devotees of Ekchakra, they used to come every day. Oh Nityanand Prabhu, oh Nitai, you are looking so beautiful, and they used to hold that child in their lap. And Padmavati Devi, she used to oil Nityanand Prabhu. She used to oil Nityanand Prabhu क्योंकि जब क्यों ऑयल देते हैं जैसे कि बच्चे का बॉडी शाइनिंग होता है. एंड ये वर्णन आता है भक्ति रत्नाकर में कि when Padmavati Devi used to oil Nityanand Prabhu, जो ऑयल
तो जो ऑयल है वो फीका पड़ने लगता था भगवान के एफल्जेंस के सामने. So Padmavati Devi is like, how sweet, how glorious my child is, how beautifully the effulgence is coming out from his body. So the जो ऑयल है, जो तेल है, वो फीका पड़ने लगता था भगवान के बॉडी के effulgence के सामने. And it is said that Nityanand Prabhu's body was like a butter, like a melted butter, and whoever is seeing Lord Nityanand Prabhu, their heart are continuously melting, continuously. And Nityanand Prabhu's body was so soft that Padmavati Devi जब वो Nityanand Prabhu अपने गोद में बिठा के वो जब पहुंचते थे, so she used to take the most softest cotton cloth, जिससे कि नित्यानंद प्रभु को दर्द ना हो रफ क्लॉथ से. बट पद्मावती देवी used to think, यार ये क्या है, छी ये नरम क्लॉथ है, छी मेरे बेटे के सामने तो कुछ भी नहीं है. So Nityanand Prabhu's body was so beautiful, so beautiful, so beautiful. We can't compare it with anything of this material world. Even I say we can't compare it with a lotus, because लोटस का भी इतना सुंदरता नहीं है जितना सुंदरता भगवान के उस मुख में है. बट क्योंकि लोटस इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग, इट डजंट कम इन दिस 84 lakh species. That's why we compare everything of the Lord with lotus feet, lotus flower, lotus face, lotus eyes. That's why. So Nityanand Prabhu, by time he became the life and soul of एकचक्र धाम. तो हर एक व्यक्ति कि निताई 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 लोग अपने, जैसे कि ब्रज में जब कृष्ण थे तो सारे जो गोपियाएं थी सब नंद बाबा के घर में जाके कृष्ण को देखते रहते थे एंड कृष्ण को निहारते रहते थे. वैसे all the devotees of एकचक्र धाम, they used to go to Nityanand Prabhu's house every day, and this whole story is narrating by that old Brahman. जो वो बुरे व्यक्ति थे एक चक्र धाम में, ये वो व्यक्ति, वो ब्राह्मण, वो ये जो पूरा स्टोरी है, he is narrating this to Janma Mata, that how opulent was those times when Nityanand Prabhu was there. And ऐसा करते करते he started explaining one of his own realization. He told Janma Mata that, you know, once I became very distressed and I was very distressed. मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, what should I do? So I just ran to Nityanand Prabhu Pandit's house. I just ran there and I took Nityanand Prabhu in my lap. And as soon as I took Nityanand Prabhu in my lap, all my distress went away by looking at his face. Because जब भगवान को हम सब कुछ समर्पित करके भगवान के पास चले जाते हैं ना, there is no distress in this material world. राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के. अगर कृष्ण रखना चाहते हैं तो कौन मार सकता है? अगर कोई कृष्ण मारना चाहता है तो कौन रख सकता है? And कृष्ण हमको मारेंगे ना, we will accept that. So he has that vishwas in his heart. So he went to Nityanand Prabhu, presented everything to Nityanand Prabhu, and thus he became happy again. He became Nityanand by just surrendering unto Nityanand. So if we surrender unto Nityanand Prabhu, even after हम कितने भी पतित है ना, nothing can defeat that love. Nothing can defeat that happiness which we will get by surrendering unto the Supreme Personality of Godhead. And all the Vaishnavas, all the glorious Vaishnavas in our parampara, all the senior devotees from whom we are now learning, we are now hearing. Even I am just doing a copy paste here from His Grace Amrendra Prabhu, His Grace Amogleela Prabhu, and from Nityanand Charitamrita. I am just copy pasting all the words of Acharyas. मैं यहाँ पे कुछ भी अपना नहीं बोल रही हूँ. So why all the glorious teachers, all the glorious Vaishnavas in our parampara, they are so much happy, they are so much in pleasure always, because they have surrendered everything unto the lotus feet of Nityananda, means the lotus feet of Guru Tattva. That's why they are completely happy. They don't have any tension, nothing, because they are surrendered unto Krishna. So then that old Brahman, he was explaining to Janma Mata that the parents were so attached to Nityanand Prabhu कि पद्मावती देवी जब नित्यानंद प्रभु थोड़े बड़े होने लगे, अब वो चल रहे हैं, Nityanand Prabhu started crawling and
जो बच्चा होता है ना चंचल हो जाता है कि मैं जाऊंगा, मुझे चलना आ रहा है, मैं चलूंगा, मैं देखूंगा इधर क्या है उधर क्या है, क्योंकि एक टाइम जो बच्चा वो ऐसे सोया रहता है, वो ऊपर को देखता है, इधर दिखता है उधर दिखता है, और जो व्यक्ति है वो आके देखते हैं तो बच्चा इधर उधर ही तो देख पाता है, बट जब बच्चा चलना स्टार्ट करता है वो सोचता है उस घर में क्या है, उस जगह पे क्या है, ये क्या है, वो क्या है। सो जो बच्चा चंचल हो गया था, सो नित्यानंद प्रभु was growing, so he started crawling the glorious our acharya, our lord of our Lord Nityanand Prabhu, he started crawling, and the parents of Nityanand Prabhu, Padmavati Devi, and Harai Pandit, they are so attached that Padmavati Devi कभी नित्यानंद प्रभु को चलने ही नहीं देते थे कि नहीं नहीं तुम मत जाओ, तुम मेरे गोद में रहो. She used to hold नित्यानंद प्रभु all the time. So and उसके बाद जो हराई पंडित थे, हराई पंडित it is mentioned that हराई पंडित अपने आंखों से कभी नित्यानंद प्रभु को ओझल होने ही नहीं देते थे कि नित्याय you always stay in front of my eyes. So they are so much attached to Lord. And devotees, we should have this bhav in our heart that may the form of Lord Shri Krishna never go away from our heart. May we can hold Shri Krishna in our heart always. Just like Padmavati Devi is continuously holding Shri Nitai. And we should hold Nityanand Prabhu like that in our heart. And हमें प्रे करना चाहिए आज के दिन की नित्यानंद प्रभु अब कभी मेरे आंखों से ओझल ना हो, हमेशा मैं आपका चिंतन कर सकूं. So when Nityanand Prabhu he grew up, थोड़े बड़े हुए, now Nityanand Prabhu he wants friends, so he approached his parents that oh my dear father, oh my mother, I want friends, I want to play. So they told that okay we are playing with you बेटा, हम तुम्हारे साथ खेल रहे हैं. So I don't know, मुझे मेरे खुद के दोस्त चाहिए जो मेरे ही एज के हो. So Nityanand Prabhu and Hadai Pandit and Padmavati Devi they smiled and they gifted him a group of friends. And वो कौन थे? Actually वो नित्यानंद प्रभु के जो बलराम थे, बलराम के ही जो द्वादश गोपाल थे, मतलब 12 जो गोप सखाए थे गोपाल बलराम जी के, वही वापस अवतरित हुए as Nityanand Prabhu's friends, and there are also other friends. So अब हम थोड़ा सा बहुत ही मैं थोड़ा सॉरी डिवोटीज मैं थोड़ा लेट करूं, आज तो नित्यानंद त्रयोदशी है, ऐसा तो रोज नहीं होगा. सो लेट अस स्टे हियर एंड हियर small pastimes of Nityanand Prabhu. I will try to complete it as soon as possible. Please let hear because ये जो सुंदर है मैं लेक्चर भी सेंड कर दूंगी जो लेक्चर्स मैंने सुने थे. So you can also hear from those lectures, but you can also hear now. As we are all meditating, we are all here, we are in devotee associations. हमें भक्त संघ में संकीर्तन करना चाहिए. संकीर्तन it doesn't mean that we are only chanting Hare Krishna Mahamantra, but it's also glorifying Lord. And Nityanand Prabhu is the Saviator God, the Supreme Personality of Saviator God. So please, I request all devotees just stay here and hear the pastimes. Beautiful pastimes are coming. So please hear. So नित्यानंद प्रभु एंड उनके जो दोस्त हैं वो क्या करते थे? दे यूज्ड टू प्ले गेम्स. क्या गेम? हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, गिल्ली डंडा, कबड्डी कबड्डी ना को बिल्कुल ना. दे यूज्ड टू परफॉर्म ड्रामास. वो लोग नाटक करते थे. क्या नाटक करते थे? वो भागवतम के 10th कैंटो की लीलाएं प्ले करते थे. फॉर एग्जाम्पल, once Nityanand Prabhu told all his friends, okay friends, तुम में से एक बनेगा महाविष्णु. You will become Mahavishnu. You will become Bhumi Devi. You will become जो भूमि देवी बनेगा. So you will go as a cow to Mahavishnu. And oh my other friends, you all will become the demigods and you will follow Bhumi Devi to Lord Vishnu. And you all will go and you will pray to Shri Mahavishnu that आप प्लीज अवतरित होइए. अब पाप बहुत बढ़ चुका है, आप अवतरित होइए इस धराधाम पे पाप को विनष्ट करने के लिए. And then at night 12 AM when all the Chakravasis they are sleeping, Nityanand Prabhu and his friends they used to come to the place. And they made a jail, that jail which is in Mathura, they made that jail
with some sticks and all that structure of that jail. And now a boy, he played the role of Krishna. Krishna appeared from the womb of Mother Devaki. And so one devotee, one friend of Nityananda Prabhu, he became Vasudev. And he took Krishna in his head in a basket. They moved through the waterways to दूसरे section में गए as Vasudev to Krishna to Nandgaon and वहाँ पे वो रख के चले आए. अगले दिन सुबह they continued the play. So what is that play? They continued that now one devotee has become Nanda Maharaj and some devotees have become Brahmanas. Some devotees have become cows जो गौ माता है. And now जो गौ माता है उनको नंद महाराज चैरिटी में दे रहे हैं. So they are playing the pastime of Nanda Mahotsav. And Nityananda Prabhu used to explain that हाँ है your management ये ऐसे से होगा, ये ऐसे से होगा, ये डायलॉग है, ये ऊपर से नीचे स्क्रिप्ट है, ये बोलोगे ऐसे दोगे ऐसा होगा. पूरा 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 भागवतम का श्लोका पे श्लोका श्लोका पे श्लोका श्लोका पे श्लोका continuous. So this was Nityananda Prabhu. Then next they continued the Leela. So one devotee, one one friend of Nityananda Prabhu, he became Putna, and one devotee became Krishna. And Nityananda Prabhu instructed Krishna that okay, suck the life air from Putna. So they played Putna Daman Leela. Then one devotee next day became Trinavartha and took Krishna far away from the Gopalas, from Yashoda Maiya. So and then Krishna he fought with that demon Trinavartha, came back. So there was a kund named Padmavati Kund where Padmavati Devi used to take baby Nitai. जब Nityananda छोटे थे एकदम बच्चे, used to take baby Nitai to there to take bath. And that kund is now also in Chakradham. If you go, you can visit there. So that kund was made by the father of Padmavati Devi, जिससे कि पद्मावती देवी स्नान कर सके. So Nityananda Prabhu and his friends that kund, and there was two trees. So उन्होंने क्या किया, जो पेड़ थे